أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو لیسن نمبر ہے 5واں مخرج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج اس 5واں مخرج جو کہ ہے لسان، اس کا پہلا حصہ یعنی اے پارٹ ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ اب میں آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ اس کو آپ نے جتنے بھی میں آپ کو پارٹس اب آگے سمجھانے لگی ہوں ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں اور اپنی میموری چپ میں ڈال لینے ہیں۔ تو چلتے ہیں لسان کی طرف جو ہمارا 5واں اور آخری مخرج ہے۔ ہم نے مخارج الحروف پڑھے، اس میں ہم نے پڑھا کہ 5 بڑے مخارج ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے خیشوم، شفتان نمبر 2، حلق ہم نے پڑھا تھا نمبر 3، نمبر 4 جوف، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں لسان۔ تو لسان پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زبان کے کتنے حصے ہیں۔ زبان کے 5 حصے یا پارٹس ہیں، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اقصی اللسان، اس کو کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں زبان کی جڑ جو ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر اس کو جو یلو ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصی اللسان۔ پھر نمبر 2 جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے وسط اللسان۔ وسط اللسان زبان کا یہ درمیانی حصہ جو آپ کو شیڈڈ نظر آ رہا ہے نا اوول شیپ میں۔ نمبر 3 پارٹ ہے اس کا حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ، یہ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہے حافۃ اللسان، یہ زبان کی کروٹ کو کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے طرف اللسان۔ طرف اللسان جو ہے وہ زبان جو ہے اس کا جو یہ کنارہ ہے اوپر والا، اس کو، اور یہ سائڈ گرین والا جو پارٹ ہے اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے 5واں جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے رأس اللسان، یعنی زبان کی نوک، بالکل یہ جو نوک کا حصہ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے رأس اللسان۔ جیسے رأس بولتے ہیں سر کو، یعنی زبان کا سر، زبان کی نوک۔ اب ہم دیکھتے ہیں زیادہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں زبان کے حصے، اور پھر ان کے جو حروف ہیں تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دم اس پکچر میں تو نہیں کریں گے، انشاءاللہ اسے اگلے والی سلائیڈ میں کرتے ہیں، یا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے۔ زبان کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم زبان کی جڑ، اور اس کو عربک میں کہا جاتا ہے اقصی اللسان۔ یہ دیکھیں یہ والا جو گرے پارٹ ہے اس کو اقصی اللسان، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ ہے زبان کا درمیانی حصہ، اس کو کہتے ہیں وسط اللسان۔ اردو میں بھی ہم وسط بولتے ہیں نا، تو یہ وہی ہے، بٹ ہم وسط نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں وسط، ہم تا استعمال کرتے ہیں، بٹ یہاں ہم نے کیسے یاد کرنا ہے وسط وسط اللسان، ٹھیک ہے۔ یہ جو یلو پارٹ ہے یہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے زبان کا کنارہ طرف اللسان۔ کنارہ مطلب یہ اوپر کا پارٹ بھی، یہ جتنا یہاں پر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ کا پارٹ بھی آتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے زبان کا کنارہ طرف اللسان۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حافۃ اللسان، زبان کی دونوں کروٹیں، یہ والی دیکھیں جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ سارا جو ہے یہ
हाफत लिसान, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास आता है जुबान की नोक। जुबान की नोक जो है उसको कहा जाता है रअसुल लिसान, बिल्कुल जो पतली सी नैरो सी जो नोक होगी इसको कहा जाएगा रअसुल लिसान। रअस बोलते हैं सर को। तो आपके लिए बहुत आसानी ये है कि वसतुल तो वसत ही है, हम जानते हैं। रअसुल लिसान ये हो गया। इसके बाद आपने जैसे अक़सल हल्क आपने किया था, है ना, तो ये आप अक़सल लिसान कर लें, वैसा ही है। वसतुल लिसान वसतुल हल्क पढ़ा था। अब तरफुल लिसान और रअस समझ लें, सर, जुबान की सर और जुबान का सर, रअसुल लिसान और हाफतुल लिसान, ये तीनों जो हैं आपने थोड़ा सा आपके लिए नए हैं नाम, तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और इस छोटी सी जुबान में कितने मखरज हैं? 10 मखारज हैं इसमें, और इनसे सबसे ज्यादा हरूफ निकलते हैं जो कि जिनकी तादाद है 18 हरूफ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जुबान के 5 हिस्से हैं और उसके अंदर 10 मखरज मखरज खासा है और जो है 18 हरूफ उनसे निकलते हैं। अच्छा, अब जब ये लिसान है, ये हमारे मुंह में है और जब इससे कोई हर्फ निकलता है तो वो जुबान में खाली जुबान की एफर्ट से नहीं निकलता, उसमें इसके बहुत से मददगार होते हैं हमारे मुंह में, और उसकी मदद से ये हरूफ जुबान से निकलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जुबान के हेल्पर्स, मददगार या कह लें उसके दोस्तों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जुबान के कितने मददगार और दोस्त हैं? या दो हैं, दांत है और तालू है, ठीक। अब पहले हम दांतों के नाम और इनकी तादाद जान लेते हैं। दांत जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है पार्ट है, लेकिन तजवीद में जो लोग नए हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है और हमें भी बहुत मुश्किल लगा था पहले, लेकिन जब आप अपनी तजवीद में किसी, जब आपको कोई चीज़ या आपको कोई नाम याद नहीं हो रहे ना टर्मिनोलॉजी में, तो आप हमेशा उसको किसी चीज़ से रिजेंबल कर लिया करें, मुशाबहत दे दिया करें। आपकी ज़िंदगी में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई आप कुछ कोई खाना पसंद है या जगह पसंद है या आपके किसी आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है, रिलेटिव का नाम है, बेस्ट कज़न का नाम है या आपके मॉम एंड डैड का नाम है, किसी से भी किसी तरह से भी उसको नाम को रिलेट कर लिया करें। वो बहुत जल्दी से याद होता है और वो भूलता भी नहीं। तो ये एक छोटी सी टिप थी उन लोगों के लिए जो घबरा जाते हैं, क्योंकि अरबिक हमारी जुबान नहीं है ना, तो ऑब्वियसली हमें जो है उसको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ी एंजाइटी होती है कि हम कैसे याद करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए आसान बना सकूं। तो दांतों के नाम और इनकी तादाद। दांत जो है वो हम उनकी तादाद हम सब जानते हैं, 32 है, 32 दांत होते हैं और ओवरऑल जनरली। और सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको ये सेट दिखाया है, बहुत अच्छी पिक्चर, जिसने भी लगाई है माशाल्लाह सदका जारी है उनके लिए, नेट से ली है मैंने नहीं बनाई। तो ये जो है, यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो दांतों के ऊपर दिए गए हैं, दांतों का ये जो सेट है। तो देखते हैं कौन सा कलर जो है वो क्या है और उसका क्या नाम है। सबसे पहले हम ऊपर के और नीचे के दो सामने के दांत ले लेते हैं, ठीक है, ये दो ऊपर के और ये दो नीचे के, इनको कहा जाता है फनाया, ठीक है। चार हो गए, दो ऊपर के और दो नीचे के। अच्छा, ये जो है दो ऊपर के जो हैं इनको कहा जाता है फनाया उलिया, आला, ऊपर, ठीक है। और नीचे वालों को कहा जाता है फनाया सुफला, यानी नीचे के दांत।
تو जब आपको मखारिज में आपको समझाया जाएगा तो आपको कहा जाता है कि सनाया ओलिया या ये जो है जुबान सनाया सुफला को लग रहे हैं या ओलिया को लग रहे हैं या दोनों को लग रहे हैं, ठीक है। तो सनाया जो है नाम हो अगर आपकी फैमिली में किसी का भी या फ्रेंड्स में किसी तरह से भी आप इसको आप रिलेट कर सकते हैं सनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है रुबाई। रुबाई सिंगुलर है, रुबाइयात क्योंकि ये चार है, ये जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ना दोनों सनाया के साथ साथ, ये देखें दो रेड, एक इधर है। सनाया सुफला के साथ भी नीचे एक इधर रेड है, एक इधर रेड है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये भी एक दो तीन चार, रुबाई, रुबाइयात, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे, आपने शेर तो सुने होंगे, उसमें होती है ना रुबाई होती है, तो रुबाइयात से उससे आप इससे याद कर सकते हैं। अच्छा फिर आते हैं, ये देखिए ब्लू, डार्क ब्लू कलर है ना, ये डार्क ब्लू कलर, ये भी एक रुबाइयात के साथ या रुबाई के साथ, देखिए एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दो ऊपर है और यहाँ पर भी दो नीचे हैं। तो ये जो है इनको कहा जाता है अन्याब। ये जो हमारे नोकीले दांत होते हैं ना उनको कहा जाता है, क्योंकि हम गोश्त खाते हैं ना तो मीट वाले जो दांत हैं उनको अन्याब कहा जाता है। और ये जो अन्याब हैं ये जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके भी जो है दांत में नोकीलापन होता है, जैसे हम देखते हैं ना उसमें शेर टाइगर हम सब देखते हैं उनके दांत भी कितने नोकीले होते हैं, उनके वो अन्याब होते हैं जो बड़े बड़े नोकीले दांत होते हैं। तो अब हमें यहाँ से भी एक क्लू मिल गया, क्या, अन्याब को देख के लंबे नुकीले दांत, टाइगर को याद रख लें, शेर को याद रख लें, किसी को भी याद कर लें, ठीक है, आपको याद रहेगा क्योंकि इससे गोश्त को तोड़ने में और खाने में आसानी होती है इसलिए। फिर आ जाते हैं हमारे पास उनके साथ ये लाइट ब्लू कलर में देखें, इन्हें आपके आगे दो लाइट ब्लू, एक इधर ऊपर वाले सेट में और यहाँ भी नीचे दो सेट में, ये भी चार हैं। इनको कहा जाता है बवाहिक। क्या कहा जाता है, बवाहिक। क्यों, इसलिए दवाहिक को मुस्कुराना कहते हैं, और जब हम मुस्कुराते हैं हंसते हैं, हंसना भी कहते हैं, तो हंसते हंसते हुए जो हमारे पूरे जो दांत का लास्ट दांत नजर आता है ना उसको कहा जाता है दवाहिक होता है वो, ठीक है, दवाहिक। तो स्माइल से या हंसी से याद रख लें इसको। फिर ये जो लाइट ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, तीन बड़ी बड़ी दाढ़ें, इनको तीन देखें, यहाँ एक तरफ तीन, एक तरफ ऊपर वाले सेट में, तीन नीचे, तीन एक तरफ और एक तरफ दाएं बाएं, ये नीचे वाले सेट में, इनको कहा जाता है पवाहिन, दाढ़ें जिनको हम कहते हैं ना, बड़ी दाढ़ें जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है पवाहिन। फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये तो हमारे लिए अजनबी नहीं है और उनको याद करना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्या है ये, अक्ल दाढ़ें हैं। इनको अरबिक में कहा जाता है, जो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ना आपको, ये है नवाजिस, और ये क्या है, ये अक्ल दाढ़ें हैं, ठीक है, अक्लदार से हमें ये याद रहेंगे। मुझे सबसे पहले जो मैंने याद किए थे, सनाया सुफला उलिया तो मुझे इजी लगे थे, फिर मैंने अन्याब याद रखा, उसके बाद मुझे दाढ़ें ये नवाजिज याद रहे, और फिर इन बिटवीन मैंने उनको याद कर लिया। तो आपको जिस तरह से भी शॉर्टकट्स खुद के खुद बनाएं, जिस तरह आपको इजी लगता है आपने वैसे उनको याद करना है, ठीक है। अब इसकी समरी क्या है, सॉरी एक चीज रह गई, अच्छा ये जो सेट है ना नवाजिस, ये वाले जो हैं देखें, एक तरफ की अगर बात करें नवाजिस, ये तवाहिन तीन और दवाहिक, ये जो चार सेट है ना इनको मिलाकर अदरास कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
अदरास। तो ये अदरास के अंदर क्या क्या आ जाएगा? दवाहिक, एक एक, और फिर आ जाएंगे 3 तवाहिन, और फिर आ जाएगी एक अकल दाढ़ी। एक साइड की बात है, ठीक है। तो वो आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समरी है, 32 दांतों का सेट होता है, उनमें से 12 दांत हैं। गिनते हैं, 12 दांत हैं, 1 2, ठीक है, और यहाँ 2 2, 4 हो गए सनाया, फिर रेड 4 हो गए रुबाइयात, फिर 4 हो गए अन्याब, कितने हो गए? 12। फिर आगे जो है दवाहिक जो है वो प्रीमोलर्स में आ जाते हैं ना, तो फिर ये जो 3 जो है ये आपको दवाहिक, और ये जो है अपना नवाजिस, ये फिर जो है इसमें आ जाएंगे अदरास में, ठीक है। 20 दाढ़ें हो गई, 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 3 4 इस तरफ, 4 4 दोनों तरफ, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गई 20 दाढ़ें और 12 दांत, ठीक। ये मैंने आपको एक और पिक्चर दे दी है, ये देख लीजिएगा आप अपने, आपको शायद इससे आसानी भी लगे, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए, मैंने ये पिक्चर लगा दी है, ये भी मैंने जो है नेट से लगाई है, और उन्होंने कहा कि आपका जो ऑथर है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, तो मैंने उनका यहाँ पर जो है वो साइट का जो एड्रेस भी लगा दिया है। तो ये थे हमारे दांतों के सेट। अब चलते हैं हम तालू की तरफ। तालू और इसके हिस्से बहुत इजी है। इसके लिए मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी जुबान की जो नोक है, टिप है, तरफुल लिसान, सबसे पहले यहाँ पर रखें दांतों की प्लेट पे, ठीक है। और फिर ऊपर का तालू उसको फील करते जाना है। अब आप ऊपर चलिए और मसूड़ों को फील कीजिए, फिर उसके ऊपर चलिए और ये जो सिलवटें हैं, सिलवटों वाला तालु है, इसको फील करें अपने जुबान से, और फिर आप आगे चलेंगे तो आपको एक गौर के जैसे राउंड होता हुआ तालु मिलेगा। बीच में आपको ये उसकी पार्टीशन भी फील होगी, ये सख्त तालु है। उसके बाद आप मजीद पीछे जाएंगे, फील करेंगे, वो आपका नरम तालु है, ठीक है। अब क्यों मैंने आपको ये कहा, ये देखें, नरम तालु जो है, इससे जो है निकलेगा आपका कॉफ, कॉफ, और इसमें जो लास्ट पार्ट है वो अल्लाहाद, लहाद, लहाद जो है, ये भी जो आपको नजर आती है लटकी हुई छोटी सी, हम उसको छोटी जुबान भी कहते हैं उर्दू में। तो ये जो है इसको हमने याद रखना है, लुहात है और या लहात है। उसके बाद ये देखिए नरम तालु, ये जो गोश्त का नजर आ रहा है ना कलर, ये देखिए ये नरम तालु है, इतना पार्ट होता है उसका। उसके बाद सख्त तालु, सख्त तालु से काफ निकलेगा, इसलिए आपको उसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ये फिर तालु सिलवटों वाला, और फिर आपके मसूड़े आएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपने सब नाम याद रखने हैं, ताकि जब हम लिसान पढ़ें और उनके मखारिज देखें तो आपको ये सब चीज़ें ज़ुबानी याद हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।